ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਇਨਸਾਈਡਰ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਹਾਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਐਨੀ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ ਸੋਲਵ ਐਨੀ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ ਸੋਲਵ ਐਨੀ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ABCD ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਥਸ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ABCD ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ABCD ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 1 2 ਐਂਡ 3, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੋ ਫਰੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿਓ ABC ਐਂਡ D, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਟਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? 6 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ 6A ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟਮ ਕਿੰਨਾ? 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਊਂਗਾ? C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 1 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ C ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 6A ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਨੇ? 6 ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 6A ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ D ਹੈ। ਤਾਂ 2D ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 2B ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ 2, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 2C ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2C ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? D ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ? 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ 6A ਇਕੁਅਲ ਟੂ C, 6A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2D ਐਂਡ 2B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2C ਪਲੱਸ D। ਇਹ ਲਓ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਸਟ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ABCD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 6 × 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 6। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਥਰਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 1 ਇੰਟੂ 2 ਇੰਟੂ D। ਤਾਂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 3 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 2B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਇੰਟੂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਪਲੱਸ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3। ਤਾਂ 2B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 12 ਐਂਡ 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 15/2। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1, C 6
H6 ठीक है, प्लस B की वैल्यू मेरे को आई सी 15/2 O2 गिव्स C की वैल्यू सी मेरे को 6 CO2 प्लस D की वैल्यू कितनी सी 3H2O। ये लो जी हो गई, बट ये देखने के आई थिंक सही नहीं लग रही, तो तुम की कर सकते हो ना, ये फ्रैक्शन खत्म करने लिए देखो 2 है ना नीचे, तो सारी इक्वेशन 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैं सारी इक्वेशन 2 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो 2C6H6 प्लस 15O2 गिव्स 12CO2 प्लस 6H2O। ये लो जी मेरे वालों क्वेश्चन डन है, जस्ट 2 मिनट के मैं ईजिली क्वेश्चन कर सकता। चैक कर लो जी, इक्वेशन बैलेंस है 12 कार्बन, ए साइड भी देखो 12 कार्बन, तो किनिया 12 हाइड्रोजन, तो ए साइड भी देखो 12 हाइड्रोजन, तो 30 की ने ऑक्सीजन, ए वाली देखो कि किने हो जाएंगे 24 के 6 किने हो जाएंगे 30। तो देखो बिल्कुल बैलेंस्ड है जी, इक्वेशन बैलेंस्ड। मैं कितना टाइम लगाया, ना तो मैंने कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया, ना ही मैंने ये देखा कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन ठीक है रिलीज हो रहा है, कुछ नहीं चेक करना, जस्ट बैलेंस करो। बैलेंस इक्वेशन बहुत ही सोहनी ट्रिक है जी, ट्रिक का भी अगे बाप कह सकते हो तुसी, बड़ा सोहना एक मैथड है जी, ABCD मैथड कह सकते हो। बस तुसी की करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है ABCD बाय मैथमेटिक्स। देखो इन्ने का मैथमेटिक्स के रूल सब आते होंगे। चलो नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक तो हो ही चुके अपना। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, काफ़ी सारे एग्जाम्पल के नाल करांगे ताकि तुहानूं वधिया समझ आ जाए। देखो जी सैकेंड क्वेश्चन की है, तुसी देख सकते हो किवें सॉल्व करोगे। मैं इत्थे इनू A मान लिया, उस तो बाद B C एंड D, मैं ABCD फाइंड करूँगा। सब तो पहले आयरन के लिए कितना लिखूंगा मैं 2A, इधर कितना है, इधर आयरन की वैल्यू इज इक्वल टू C हो गया, ठीक है ना। दूसरी क्वेश्चन फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए मैं की लिखूंगा 3A इज इक्वल टू, इधर की लिखूंगा, इधर ऑक्सीजन कितना जी D है, तो D हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन फॉर कार्बन कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू की लिख लूँगा मैं, B इज इक्वल टू आ जाएगा D। ये लो जी 3 क्वेश्चन हो गया। आई थिंक ये बड़ा ईजी है, तो इन्हों सॉल्व करना तो तुम किसी भी 1 मान सकते हो। तो इतने A है, इतने A है, इतने C किसी च नहीं है D। चलो मैं A नू की मान लेना 1 मान लेना फॉर अपनी ईज, ठीक है ना। A नू आप की मान लिया 1 मान लिया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू 2 आ गई, C की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो A की वैल्यू इतने भर देना मैं 3 × 1 इक्वल टू D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। चलो जे D आ गया, B आ गया, सारा कुछ आ गया, तो फिर B भी दस दो कितना होएगा। जे B भी दस दो जी कितना होएगा, बड़ा ही सौखा हो रहा था काम। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी जिन्नी D की है। लो जी सारा कुछ आ गया, तो फिल कर दो, देख लो चेक करके कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत है। चलो करिए, Fe2O3 प्लस कितना हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी आई है 3 कार्बन गिव्स C की वैल्यू आई सी 2 आयरन प्लस D की वैल्यू आई सी 3 × कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लो चेक कर दे जी, 2 आयरन 2 आयरन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 3 कार्बन। देखो बहुत ही ईजी हो रहा है। आई थिंक इस तो मस्त ट्रिक तो नहीं हो सकती। देखो क्वेश्चन हो गया कितना, मैनू तो लगता 1 मिनट भी नहीं लग्या, 1 मिनट भी मैंने नहीं लिखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तुसीं दसो तुहानू कितना टाइम लगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखो जी बहुत ही सोहनी ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ईजिली बैलेंस कर सकते हो, मैथड बहुत ही सोहना है। चलो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फटाफट तेजी नाल चल रहा है, आई थिंक स्पीड ऑफ लाइट तो भी तेज हो रहा है काम। हाँ जी, इस तो बाद करते हैं आप डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। देखो फटाफट, बड़ी सोहनी ट्रिक है, इस तो ईजी क्वेश्चन नहीं मिलणगे थोनों। इन्नी छोटी ट्रिक है कि तुसी जस्ट 1 मिनट तो भी पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं तो कर रहा, तुसी भी करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखते हैं पहला कौन करेगा। A मन्निया, B मन्निया, C एंड D, बस ABCD की वैल्यू फाइंड कर लो इक्वेशन बना के, और कुछ नहीं करना। देखो इस तो सौखा कुछ नहीं मिलेगा, मैं दोबारा कह रहा। पहला मैं नाइट्रोजन की ट्रिक लिख रहा, इक्वेशन लिख रहा, A इज इक्वल टू इधर नाइट्रोजन कितना C, तो 1 हो गई। फोर हाइड्रोजन लिखो, फोर हाइड्रोजन फटाफट। मैं अपनी पूरी कंसनट्रेट लगा के कर रहा, तुसी भी करो। आई थिंक तुसी पहला कर लोगे, मैंने पता है तुसी फास्ट हो। तो कितना हो जाएगा 3A इज इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन कितना है 2D, दूसरी क्वेश्चन भी मिल गई। थर्ड क्वेश्चन फॉर ऑक्सीजन, इधर कितना जी 2B इज इक्वल टू, इधर एक रहा C प्लस D हो जाएगा। देखो जी C प्लस D, क्योंकि एक ऑक्सीजन ए रहा एक ए रहा, C प्लस D, बस C नू ना मिस कर देना, ये ध्यान रखना। उस तो बाद ए हो गया। चलो मैं सॉल्व कर रहा, मैं A नू 1 मान लिया, A नू 1 मान लिया, तो फिर C भी तो 1 आ गया। चलो जी जे मैं A C आ गया, तो मैं D नू भी बड़ी छेती कर सकता, 3 × 1 इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। एक रह गया, फटाफट करो, D रह गया कला, D सॉरी B हो गया, D हो गया, B रह गया। तब 2B कितना आएगा, C की वैल्यू 1 है प्लस 3/2, B कितना आ जाएगा, B कितना आ जाएगा 2B कितना आ जाएगा 5/2, तो B आ जाएगा 5/4। ये लो मेरे वालों हो गया, क्वेश्चन हो गया, डन हो गया, बस हो गया। मैं फिल कर रहा हूँ वैल्यूज। चलो मैं इतनी लिख देना, आई थिंक दिख रहा होगा कितना हो जाएगा। A की वैल्यू 1 NH3 प्लस B की वैल्यू 5/4 O2 गिव्स C की वैल्यू 1, तो NO आ जाएगा, प्लस D की वैल्यू 3/2
H2O ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਇੱਥੇ 2 ਹੈ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस देखो 4 ना मल्टीप्लाई करोगे 2 या 4 कितना हो जाएगा 6H2O। ये लो जी देख लो चेक कर लो, मेरे वालों तो क्वेश्चन डन हो गया, तुसी देखो तुसी कर लिया या नहीं, किने पहला किया ये भी दसना कमेंट करके। तो देखो चेक कर लेने सही किया या गलत किया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई अपने तो। 4 नाइट्रोजन डन, 12 हाइड्रोजन ठीक है, 10 की ऑक्सीजन 4 ਤੇ 6 10। ओ माय गॉड बिल्कुल ठीक है जी। देखो क्वेश्चन डन है, किन्नी छेती किया क्वेश्चन, तुसी आप दसो मैनू किन्नी छेती, जस्ट 1 मिनट लगे इसनूं सॉल्व करन दे विच। इस तो सौखा कुछ नहीं मिलेगा, इस तो सौखी ट्रिक नहीं मिलेगी। चाहे ऑक्सीडेशन कढ लो पहला इन्हां दा, उस तो बाद तुसी जिवें मर्जी कर सकते हो। बॉल लेंथी मैथड है, उसके 5-6 स्टैप ने पहले उसनूं सॉल्व करन दे, बट नहीं करांगे आपां उन वाले मैथड नाल। तुसी स्टैप देखो किन्ने है, ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट मैथेमैटिक्स का सिंपल रूल बेसिक रूल लग रहे हैं मैथेमैटिक्स के, ठीक है ना। ये ईजिली तुसी कर सकते हो आई थिंक। बाकी देखो उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप। इस तो बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो जी इनू भी तुसी बड़ी छेती कर सकते हो, किमें कर सकते हो ABCD सेम मैथड ABCD मैथड नेम दो इसमें, ठीक है ना। तो पहला नाइट्रोजन लिए इक्वेशन बना दो, ए आ जाएगा इतने नाइट्रोजन ए है, तो इधर नाइट्रोजन कितना है सिर्फ एक तो C है इक्वल टू C नाइट्रोजन C एक ए रहा सी प्लस 2D, ठीक है ना। बस इक्वेशन थोड़ा ध्यान देना चेक करना। उस तो बाद 4 हाइड्रोजन इतने कितना 3A इज इक्वल टू हाइड्रोजन, देखो एक तो हाइड्रोजन ए रहा कितना हो जाएगा 4C, 4 हाइड्रोजन कितने नहीं है तो ए हो गया इक्वेशन। 4 कौन है क्लोरीन, क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा। इधर क्लोरीन कितना है, इधर हो जाएगा इक्वल टू C, ए लो ये हो गया ना, हो गया ना। हूँ देखो मैं इतने तो दोनों इक्वेशन थोड़ियां जिहियां कॉम्पलैक्स जिहियां लग रही ने, तो इन्होंने दोनों चो किसी भी चाहे ए नूं चाहे C नूं जां B नूं मैं की करदा जी, मैं B नूं 1 मान लेना, B नूं की मान लिया 1 मान लिया, तो बाकी इक्वेशन मैं सॉल्व कर सकदा, बड़ी छेती सॉल्व कर सकदा। कि जे मैं B नूं 1 मान लिया तो C की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, चेक कर लो C की वैल्यू भर दी मैंने 2 आ गई, B की वैल्यू इतने भरी 2 × 1 2, ओके डन। इतने हम C का पता 2 है तो A की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। 3A इज इक्वल टू 4 × 2, A की वैल्यू आ जाएगी 8/3, ए लो जी डन हो गया क्वेश्चन। देखो की रह गया, देखो A भी आ गया है ना जी, उस तो बाद C भी मिल गया, B भी मिल गया, कौन रह गया कला D रह गया। पुट कर देने थे A की वैल्यू कितनी है 8/3 इज इक्वल टू C की वैल्यू 2 + 2D। लो जी इतों आप D भी कट लवेंगे, बड़ी छेती निकल सकता है। 8/3 - 2 इक्वल टू 2D, तो कितना हो जाएगा 6 8 - 6 कितना हो जाएगा 2/3 है ना। तो 2D की वैल्यू आ गई जी 2/3, तो 2 नाल 2 कैंसल, D की वैल्यू आ गई 1/3। देखो कितना टाइम लगता है, बेसिक मैथ है, इन्ने क स्किल सब दे होंगे ने कि तुसी इन्नियां इक्वेशन नूं सॉल्व कर सकते हो। ये तो बच्चों वाली इक्वेशन ने तुसी ईजिली कर सकते हो आई थिंक, है ना। तो चलो आप सॉल्व कर लेंगे जी, अपनी इक्वेशन लिखते हैं, ड्रॉ कर दें, मैं थोड़ा नीचे करके लिखना। तो देखो जी मैं सही करके लिख देने थे, तो कितना हो ए की वैल्यू फिल कर दो जी 8/3 NH3 प्लस B की वैल्यू देख लो जी, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू रही है 1 क्योंकि अपने मनी सी ना Cl2 गिव्स C की वैल्यू 2 NH4Cl प्लस D की वैल्यू 1/3 N2। चलो जी नहीं लग रही वधिया, नहीं लग रही 3 ना मल्टीप्लाई, इधर भी 3 इधर भी 3, सारी इक्वेशन 3 ना मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 नाल 3 कैंसल 8 NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स इतने 6 ना मल्टीप्लाई 6 NH4Cl प्लस N2। ये लो जी इक्वेशन ड्रॉ हो चुकी है, मैं बैलेंस कर दी है, तुसी चेक करो कि सही है या गलत है। चलो जी 8 नाइट्रोजन 6 ते 2 8 नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन 24 एक नहीं हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। उस तो बाद क्लोरीन 6 क्लोरीन लो जी डन है। देखो कितना छेती तुसी बड़ी छेती कर सकते हो जी, इस तो सौखा ट्रिक नहीं मिलेगा। इक्वेशन को बैलेंस करने है, कैमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने लिए इक्वेशन बैलेंस करो, मैथेमैटिक्स दी अपने वालों ड्रॉ करो ABCD मन के, किसी भी एक सौखा जा जो थोड़ा वधिया लग रहा है उन्होंने तुसी 1 मान लो, बाकी सारियां फाइंड करो, पुट करो तो बैलेंस करो। ये लो जस्ट 1 मिनट के क्वेश्चन हो जाता है, 1 मिनट के एक एग्जाम्पल होर करते हैं ताकि थोड़ा होर वधिया समझ आ जाए। ये लो जी देखो जी लास्ट एग्जाम्पल करते हैं 5th नंबर, ताकि थोड़ा पूरा टॉपिक क्लीयर हो जाए, है ना। तो मैं भी करदा तुसी भी करो, बहुत ही कमाल की ट्रिक है, ईजिली तुसी इसनूं कर सकते हो विदिन 1 मिनट। देखो जी ABCD इन्हों के कोफिशिएंट मान लो ABCD तो उन्होंने इक्वेशन बनाओ। पहले कॉपर की इक्वेशन बना लेने आप। इतने देखो 2 कॉपर ने A, इतने भी तो कॉपर लिखा हुआ है तो प्लस 2B तो आएगा नाल, 2B भी आएगा नाल, इक्वल टू देखो इक्वल टू की दिता C दिता है, एक तो ए वाली इक्वेशन बस ए नूं ना मिस कर दो कि 2A इक्वल टू C लिख दो, इतने 2B भी है नाल 2B भी आएगा, है ना। तो उस तो बाद लिखो ऑक्सीजन के लिए
इत्थे कितना जी A इज इक्वल टू ऑक्सीजन इधर कितना जी 2D, ये हो गया। उस तो बाद लिखो सल्फर के लिए, सल्फर देखो इत्थे कितना B, B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सल्फर इत्थे हो जाएगा D हो जाएगा। देखो ये चीज़ हो गई है ना, देख लो एक बार चेक कर लो। इस तो बाद जस्ट इन इक्वेशन ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ D ਨੂੰ ਜਾਂ B ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ B ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜੀ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1। ਜੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, D ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, B ਆ ਗਿਆ, A B D C ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ C ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ 2 × A, 2 × 2 प्लस 2 × 1 इक्वल टू C आ गया। तो C कितना आ जाएगा 4 ਤੇ 2 कितना हो जाएगा 6, सॉरी 6 हो जाएगा ना। ये आ लो सारियां वैल्यू मिल गई हैं, तो पुट कर दो जी, पुट कर दो। देखो इनू आप इत्थे फिल कर देने, ये लो कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 2 Cu2O, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 1 अपने मनी सी, तो Cu2S आ जाएगा, प्लस कॉपर की वैल्यू कितनी, सॉरी गिव्स आएगा ना इत्थे, सॉरी तो इत्थे आ जाएगा 6 Cu, प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू भी 1 है, तो SO2। ये लो जी देखो आई थिंक इसका बैलेंस ही हो चुकी है, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन से तो कुछ आया ही नहीं है। फिर भी आप एक बार चेक कर लें कि हो गई है। देखो 4 ਤੇ 2 6, इधर भी 6 ने, ठीक है, कॉपर इतने ऑक्सीजन 2 ने, इतने भी 2 ने। उस तो बाद कौन रह गया, सल्फर इतने 1 है, इतने भी सल्फर 1 है, हो गया जी बैलेंस है, डन। आई थिंक 1 मिनट लग्या नहीं मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने दी, 1 मिनट तो भी मैं ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਬਟ ਉਹ ਲੈਂਥੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 7 ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 7 ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ पर एटम सेम ने, जो नहीं सेम तो अपन इक्वल करने पैणगे, मतलब मल्टीप्लाई करने की एक दूसरे की इक्वेशन के नाल 2 3, जिस तरह की 3 2 है ना। उस तो बाद फिर थोड़ा ऑक्सीजन सॉरी पहला फिर थोड़ा हाइड्रोजन बैलेंस करना पएगा, फिर थोड़ा ऑक्सीजन बैलेंस करना, मतलब काफ़ी सारे मैथड ने इसमें सॉल्व करने, टोटल 7 मैथड ने। उस तरह ना करोगे, आई थिंक मैं थोड़ा यही रिकमेंड करूँगा, ये वाला मैथड चूज़ करो। कोई भी इक्वेशन आ जाए, एनी इक्वेशन फ्रॉम द वर्ड, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आ जाए, कोई भी रिएक्शन आ जाए, इस मैथड नाल ABCD मैथड नाल तुसीं उहनूं सॉल्व कर सकते हो। जे वधिया लगी ट्रिक तो बाकियों के नाल जरूर शेयर कर देना तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जी जे तुसीं नवे हो इस चैनल के उपर, ठीक है। लाइक तो कमेंट करके जरूर दसो, ताकि आप नैक्सट होर सोहनी ट्रिक्स इस तरह ही करते रहेंगे, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथेमैटिक्स हो, ठीक है जी। तो लाइक करो वीडियो में, शेयर कर दो जी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ मिलते हैं नैक्सट वीडियो के नाल। थैंक यू।